सबको दिखाई दे रहा है प्रेजेंटेशन, बोन टाइप्स एंड कंपोजिशन? यस सर। यस सर। ओके। तो हमने प्रीवियस क्लास में वी हैड स्टडीड अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। 4 पार्ट्स हैं, बोन्स, जॉइंट्स, कार्टिलेज एंड मैरो कैविटी, जो कि मैंने बताया था इट इज इनसाइड द लॉन्ग बोन्स. So bone, joints, cartilage and marrow. Then we had studied about the functions of skeletal system. Support, main function was support. Skeletal system is framework for all the positions of the body. Then our limbs, they act as pillars. Rib cage supports thoracic wall. So our rib cage, it supports the thoracic wall, thoracic region, chest region. Second main function of skeletal system is protection. So ribs protect lungs and heart. These are the main vital organs. So for every vital organs around that there are bones to protect them. So ribs protect lungs and heart. Our skull bone, head bone protects our brain. Then our vertebra, I told you, lumbar, sacral, cervical, thoracic vertebra. So all those vertebrae, they protect spinal cord. So this is the second function. Then third function is movement. So without joints, there will not be any movement. So bones serves as attachment sites for muscles and tendons. All the muscles and tendons, they attach to from the bones. Then muscles use bone as levers. Muscles moves the bone. Otherwise bone cannot move on itself. अपने आप bone move नहीं हो सकती. Muscle use bone as lever and move them. Then joints between allow for range of motion. So joints present in between the bones. Bones के बीच में जो joint present है वो होने देते हैं range of motion को, movement को. So joint between allow for range of motion. Then fourth function हमने पढ़ा था mineral and growth factor storage. So reservoir for calcium and phosphate. So bones, they are reservoir for calcium and phosphate. And it releases minerals into the blood. और जब जब इनकी कमी होती है blood में, the bones, they release calcium and phosphate into the blood. Then growth factors. So bones also store some amount of insulin, some transforming factors which are needed for the functioning of the body. सर स्क्रीन पर जेट नहीं हो रहा है. स्क्रीन नहीं दिख रहा है? नो सर. 1 सेकेंड बेटा, यहाँ तो मुझे दिखा रहा है कि दिख रहा है. अभी देखो, बाकी सबको हो रहा है? नहीं दिख रहा है सर. यस सर, दिख रहा यस है। सर। सर दिख नहीं. आपको अगर नहीं दिख रहा है बच्चे, तो एक बार आप लेफ्ट होके दोबारा से ज्वाइन हो जाओ. मूविंग ओके सर. मीटिंग से लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करो तो दिख जाएगा. ठीक है, बताना मुझे ना दिखे तो. ठीक है, तो मिनरल एंड ग्रोथ फैक्टर स्टोरेज हमने पढ़ा था. मिनरल्स कौन कौन से स्टोर होते हैं? कैल्शियम एंड फॉस्फेट. And the bone releases these minerals into the blood. Growth factors which are stored in the bone are insulin, transforming factor. Morphogenic means structural, proteins which form the structure. So morphogenic proteins also are present in the bone. Last function of the bones is blood cell formation. I told you that bones have marrow cavities, mainly in the long bones, primarily long bones. So this marrow cavity, it initiates hematopoiesis, blood cell formation. The process of blood cell formation starts in marrow cavity. Initiate होना मतलब start होना, starting. So marrow initiates hematopoiesis, that is blood cell formation. So these are the 5 functions we studied. Support, bones give support, they protect some organs, they allow for movement, they store some minerals and growth factors, and there is blood cell formation. The hematopoiesis process of blood cell formation starts from the marrow cavity of long bones. Then we studied how the bones are joined together. So joints are present in between the bones filled with cartilage. So in between the joint space there is cartilage.
which decreases the friction को कम करता है ये. It allows for wider range of movement. So joints, they allow for wider range of movement. Circular movement it can be angular movement जो हमने पढ़े थे, flexion, extension, ये तो एंगुलर मूवमेंट हो गए. और सरकमडक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, ये सब क्या है? सर्कुलर मूवमेंट. सो रोटेशन Sir, जितनी भी. हाँ, हो रही स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही. अरे बाकी सबको हो रही है या किसी को नहीं हो रही? सर हो रही है. हो रही है सर. जिसको भी नहीं हो रही है प्लीज एक बार लेफ्ट होके दोबारा से ज्वाइन करो, हो जाएगी प्रेजेंट. सर कि दोबारा ज्वाइन किया है. ओके, मैं एक बार स्टॉप प्रेजेंटेशन करके फिर से करता हूँ. 1 सेकेंड. अब देखो सबको हो रही है? हाँ Yes, यस sir. सर अभी हो. यस हो सर. रहा है ना Yes. सब? यस सर. ठीक है, ओके ओके. सो जॉइंट्स के बारे में हम पढ़ रहे थे. कनेक्शन बिटवीन द टू बोन्स, and in between the joint there is cartilage, which and the joint allows for wider range of movement. बहुत सारे movements को joint allow करता है. Movements can be circular and angular. तो जो भी हमने पढ़े थे flexion, extension, वो सब angular movements हैं. और जो rotations जितनी हमने पढ़ी, these are circular movements, circumduction and all. They reduce rigidity of bone structure. तो जो joints हैं, they reduce the rigidity, hardness of the bone structure. They provide flexibility. They allow for movement of the skeleton. Otherwise जो skeleton है वो पूरा hard हो जाएगा, movement possible नहीं होगा. तो सारा जो movement होता है skeleton पे वो joints पे होता है. फिर हमने functions पढ़ा था cartilage का. Cartilage within the joints provides shock absorption and decreases friction. So cartilage प्रोवाइड्स शॉक एब्जॉर्प्शन. वो शॉक को एब्जॉर्ब करता है, जो भी फोर्सेस जॉइंट पे लगते हैं उनको एब्जॉर्ब करता है. एंड इट आल्सो डिक्रीजेस फ्रिक्शन विद इन द जॉइंट. जब भी मूवमेंट होता है तो दोनों बोन्स आपस में टकराए नहीं, उनमें फ्रिक्शन ना हो, उसको ये कार्टिलेज डिक्रीज करता है. ये दोनों बोन्स को कवर करके रखता है जॉइंट पर. तो कार्टिलेज कवर्स द बोन एट द जॉइंट एंड इट एब्जॉर्ब्स द शॉक एंड डिक्रीजेस फ्रिक्शन. These are the two functions of cartilage. अब हमने लास्ट ये पढ़ा था, what are the types of skeleton or bones? Axial skeleton and appendicular skeleton. Axial skeleton is which is present in the center of the body. All the bones which are present near the center or in the center, like skull bone, vertebral column, our rib cage and pelvis, center pelvis. Appendicular skeleton is the bones which are present on the sides of the body, like upper and lower limb bones, shoulder bone, hip bone. Our femur bone, humerus bone, shoulder bone is humerus bone. So all these bones, they are appendicular skeleton which are present on the sides. So in this was the last picture which we had seen. All the blue color bones, they are axial skeleton, and all the pink color bones are appendicular skeleton which are present on the sides. अभी किसी ने अगर म्यूट नहीं किया हुआ है तो म्यूट कर लो, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है. सो एक्सियल स्केलेटन इज इन ब्लू इन कलर which is present in the center, and appendicular skeleton, it is pink in color which is present on the sides of the body. ये पिक्चर में पिंक और ब्लू है, अदरवाइज बोन्स सारे व्हाइट होते हैं. ठीक है, आप समझने के लिए है ये. तो एक्सियल स्केलेटन इज इन द सेंटर and appendicular skeleton is in the pink color shown in this picture. Now coming to the types of bones. Now main thing which we have to study today is types of bone. So bones are of 4 types: long bone, short bone, flat bone, irregular bone. जिसकी शेप irregular हो, that is irregular bone. जो लंबी है लंबाई में, long bone जो छोटी है short bone, और जो flat है बिल्कुल उसको फ्लैट बोन. तो अभी हम देखेंगे, यहाँ पे देखो ये बोन लॉन्ग है, दिख रहा है ना, लंबी है, शाफ्ट सर्कुलर है, शाफ्ट लंबा है,
सो दिस बोन इज लॉन्ग बोन. कौन सी बोन है ये कोई बता सकता है? लेग बोन. नहीं बच्चे, ये ह्यूमरस बोन है. Yes. ह्यूमरस बोन है ये, जो शोल्डर जॉइंट बनाती है, हमारा आर्म में प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, शोल्डर से एल्बो के बीच में. तो दिस इज ह्यूमरस बोन, ये लॉन्ग बोन है. दिस इज शॉर्ट बोन. ये कौन सी बोन है, कोई अंदाजा लगाओ? विच वन इज दिस बोन? क्या नाम है इसका, कहां पर होती है? चलो ये अंदाजा लगाओ. पटेला. कोई भी? पटेला. वेरी गुड. दिस बोन इज पटेला, जो हमारे नी जॉइंट पर होती है, हमारे घुटने के सामने की तरफ, जो हम नी कैप भी बोलते हैं, घुटने के सामने की तरफ में बोन होती है पटेला बोन. ये वाली बोन इरेगुलर बोन. अभी कई बार इसका नाम पढ़ा हमने. हिप. और हिप बोन. वेरी गुड. हिप बोन या पेल्विस बोन, क्या बोलते हैं इसको? जी सर. पेल्विक. हिप. हाँ, हिप बोन या पेल्विक बोन, पेल्विस बनाती है ये. तो इसकी शेप बड़ी इरेगुलर होती है क्योंकि इस पे बहुत सारी मसल्स अटैच है. So this is pelvic bone. Last one is flat bone. शोल्डर ब्लेड. शोल्डर ब्लेड. Shoulder blade. और इस बोन का नाम क्या है वैसे? स्कैपुला. कौन सी जी बोन सर. है? स्कैपुला बोन. सो दिस इज फ्लैट बोन. बिल्कुल फ्लैट है, दोनों तरफ से फ्लैट है. एजेस जो हैं वो दोनों तरफ से ये एंटीरियरली पोस्टीरियरली फ्लैट है. सो लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, इरेगुलर बोन एंड फ्लैट बोन. सबको समझ में आ रहा है? कोई भी बोन को देख के पहचान सकता है ना, विच वन इज शॉर्ट, विच वन इज लॉन्ग, विच वन इज इरेगुलर एंड विच इज फ्लैट. तो अगर यहाँ फीमर हो, फीमर भी लॉन्ग बोन है. टीबिया, फिबुला, रेडियस, अल्ना, ये सब लॉन्ग बोन है, सबके सब. कार्पल बोन जितनी है हमारे रिस्ट में, 8 कार्पल होते हैं, वो भी शॉर्ट हैं. हमारे लेग में टार्सल बोन होती हैं, वो भी शॉर्ट बोन होती हैं. इरेगुलर बोन्स बहुत कम है, मेनली पेल्विस ही इरेगुलर है, बाकी सबकी एक डेफिनेट शेप होती है बोन्स की. और स्कैपुला जो है वो फ्लैट बोन. स्कल बोन जो है हमारी, वो भी फ्लैट बोन है. So now one by one we will study about all the types of bones. So first one is long bones, longer than they are wide. So लंबाई ज्यादा है, breadth जो है वो कम है, wideness कम है. So these are longer comparison to their wideness. Has a shaft and 2 ends. So ये जो part है बीच वाला, this is known as shaft and 2 ends, upper end and lower end. ऊपर वाला एंड इसका और नीचे वाला एंड और बीच का जो पोर्शन है दैट इज शाफ्ट. वेट बेयरिंग बोन्स. सो दीज लॉन्ग बोन्स आर वेट बेयरिंग बोन्स. अपर लिम में है, लोअर लिम में है, एंड दे सर्व लाइक स्टील बीम्स. सारा वेट इनके थ्रू फ्लोर पे जाता है बॉडी का. लोअर लिम में जो हमारी बोन्स है, फीमर, टीबिया, बॉडी वेट इज ट्रांसफर्ड थ्रू दिस बोन्स एंड दे फंक्शन लाइक स्टील बीम्स. दे प्रोवाइड द ग्रेटेस्ट स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट. तो हमारे बॉडी का जो मेन स्ट्रक्चर और सपोर्ट है वो लॉन्ग बोन्स प्रोवाइड करती हैं. दे प्रोवाइड ग्रेटेस्ट स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट टू द बॉडी. एग्जाम्पल इज ऑल लिम्ब बोन्स. अभी मैंने बताया हमारे जो लिम्ब की सारी बोन्स हैं, एक्सेप्ट नी कैप और पटेला बोन. पटेला बोन को छोड़ के, रिस्ट में जो कार्पल हैं उनको छोड़ के, और एंकल में जो टार्सल बोन होती हैं उनको छोड़ के, बाकी सारी जो अपर लिम और लोअर लिम में बोन्स हैं वो सारी लॉन्ग बोन्स हैं. ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, हमारे फेलिंजेस, मेटाकार्पल, ये सब छोटी बोन है पर लॉन्ग है. इनका भी लंबाई जो है वो ज़्यादा है ब्रेथ से. सेम लोअर लिम में अगर हम आए तो फीमर, टीबिया, फिबुला, फिर टार्सल्स को छोड़ दो, आगे जाएंगे मेटाटार्सल, उंगलियों के अंदर जो फेलिंजेस होते हैं, तो वो सब भी फेलिंजेस जो हैं वो शॉर्ट बोन में भी आएंगे. तो दीज आर मेनली द लॉन्ग बोन्स जिसमें दे आर लॉन्गर देन देयर विड्थ. लंबाई जो है वो चौड़ाई से ज्यादा है. दे हैव शाफ्ट एंड 2 एंड्स, अपर एंड एंड लोअर एंड. दे आर वेट बेयरिंग बोन्स. बॉडी का वेट इनके थ्रू ट्रांसफर होता है. दे प्रोवाइड द ग्रेटेस्ट स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट. एग्जाम्पल इज ऑल लिम्ब बोन्स एक्सेप्ट
patella, kneecap, wrist bone or carpal bone, and ankle or tarsal bones. सो लॉन्ग बोन्स आप देख सकते हो स्ट्रक्चर भी यहाँ पे ये फीमर बोन दिखाई हुई है, फीमर में बिल्कुल सर्कुलर हेड होता है, तो दिस इज द फीमर बोन। फीमर के अंदर देखो बीच में से एक खाली जगह है, दैट इज मेडुलरी कैविटी, मैरो कैविटी और मेडुलरी कैविटी। सो आउटर जो बोन होती है वो कॉम्पैक्ट बोन होती है, हार्ड बोन होती है, कॉम्पैक्ट बोन। इनसाइड बोन में जो है बहुत सारा नेटवर्क होता है, ऑस्टियोफाइट्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, तो वो स्पॉन्जी बोन होती है। कॉम्पैक्ट बोन आउटसाइड, स्पॉन्जी बोन इनसाइड, मैरो कैविटी इन बिटवीन, सेंटर में मैरो कैविटी और मेडुलरी कैविटी। देयर इज एपिफाइजियल लाइन, एंड्स पर होती है ये एपिफाइजियल लाइन। ऑन दिस लाइन द बोन ग्रोथ्स, मतलब बोन की जो ग्रोथ है वो इन एपिफाइजियल लाइंस पे होती है, इन जगहों पे बोन की ग्रोथ लंबाई बढ़ती है टिल वी आर एट द ग्रोइंग एज, मतलब 20 to 25 ईयर्स तक ये एपिफाइजियल लाइन रहती है, उसके बाद में इट डिसअपियर्स, गायब हो जाती है ये, क्योंकि बोन ने अपनी एक लेंथ ले ली है, उसके बाद लंबाई हमारी नहीं बढ़ती, तो बोन की भी लंबाई नहीं बढ़ती है। तो दिस एपिफाइजियल लाइन इज विजिबल क्लियरली इन चिल्ड्रन। अगर आप किसी बच्चे का एक्सरे लोगे तो एक्सरे में आपको आराम से एपिफाइजियल लाइन विजिबल होगी। सो दीज आर द लाइंस ऑन विच द growth of bone occurs. ठीक है, so long bone, shaft is long, upper end, lower end, upper end is upper end, outside bone is compact bone, inside bone is spongy bone, then there is medullary cavity in the center of the bone and epiphyseal line at the end। ऐसे ही upper end पे भी epiphyseal line होती है, lower end पे भी होती है। On these lines the growth of bone occurs। तो सारी long bones इस पिक्चर में देखो ब्लू कलर से दिखाई हुई हैं, so these are all long bones, upper extremity की और lower extremity की, these are long bones। Now coming to the short bones. The short bones are cube shaped, allow for wider range of movement। तो ये क्यूब शेप की होती हैं, they allow for wider range of movement। Example is wrist bones and ankle bones, so carpals and tarsals। and हमारी patella is also a short bone। so short bone cube shape की हैं, they allow for wider range of movement due to the presence of these bones, range of movement increases। so wrist भी हमारी जैसे बहुत मोबाइल है, हम रेडियल डिविएशन, अल्ना डिविएशन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, हाइपर एक्सटेंशन, ये सब रिस्ट पे कर सकते हैं, रिस्ट को गोल भी घुमा सकते हैं। तो ये सब मूवमेंट इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द कार्पल बोन्स, स्मॉल बोन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द रिस्ट। So short bones, they are cube shaped, they allow for wider or more range of movement। example is wrist bones and ankle bones। so यहाँ आप देख सकते हो ब्लू कलर से शो किया हुआ है wrist bones। तो ये 8 bones होती हैं जो कि कार्पल होती हैं। there are 8 कार्पल bones, मेटाकार्पल नहीं है ये, these are कार्पल, ये गलत लिखा हुआ है, these are only कार्पल। ठीक है, these bones are metacarpal, जो ये आगे हैं बोन, लंबी बोन्स, these are metacarpal। so wrist bones are carpal bone। सेम पटेला देखो यहाँ पर ब्लू कलर से शो किया है, पटेला। एंड देन टार्सल बोन एट द एंकल जॉइंट, एंकल जॉइंट पर भी ब्लू कलर से शो किया है, these bones are tarsal bones। so carpal in the upper limb, tarsal in the lower limb and patella in the knee joint। so these are the short bones। short bones का स्ट्रक्चर भी सेम है, outside layer is compact bone, inside there is spongy bone, network of fibers of bony fibers which form the spongy bones inside। outside से bone पूरी hard होती है, that is compact bone। last है flat bones। so these are thin
flat and curved. These bones are very thin, they are flat and curved. हमारी जो स्कैपुला है वो बाहर की तरफ से कॉन्वेक्स है, अंदर की तरफ से कॉनकेव है, तो वो कर्व भी होता है इसमें थोड़ा सा. दे प्रोटेक्ट द सॉफ्ट टिश्यू लाइक प्लेट्स ऑफ आर्मर. तो ये स्मॉल बोन है, फ्लैट बोन, तो हेड बोन जो है हमारी वो भी सॉफ्ट टिश्यूज को कवर करती है और उनको प्रोटेक्ट करती है. जैसे स्कैपुला भी थोरेसिक जो मसल्स हैं उनको कवर करती है और उनको प्रोटेक्ट करती है. तो पीछे की तरफ से अगर कोई हमें मारता है तो वो डायरेक्टली अपर बैक पे अगर कोई थप्पड़ मारे या मुक्का मारता है तो वो डायरेक्टली जो फोर्स है वो मसल्स में नहीं जाता. बोन एब्जॉर्ब्स दैट फोर्स एंड प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट टिश्यू विच इज लाइंग बिलो द बोन. बोन के नीचे जो सॉफ्ट टिश्यू है उसको वो प्रोटेक्ट करती है. तो फ्लैट बोन्स आर थिन, पतली होती हैं, फ्लैट हैं और कर्व्ड हैं. दे प्रोटेक्ट द सॉफ्ट टिश्यू. एग्जांपल स्टर्नम. चेस्ट में जो सेंटर में बोन है स्टर्नम. शोल्डर ब्लेड दैट इज स्कैपुला. रिब्स, हमारे जो रिब्स हैं दोनों तरफ वो भी फ्लैट होते हैं, लंबे होते हैं पर फ्लैट होते हैं, थिन होते हैं, बहुत पतले होते हैं ये रिब्स. एंड स्कल बोन, हमारे जो हेड की बोन है दैट इज ऑल्सो फ्लैट बोन. सो दीज आर द 4 बोन्स which are flat: sternum, shoulder blades, our ribs and skull bones. So flat bones, they are thin, flat and curved. They protect the soft tissue. तो यहाँ आप देखो ये स्टर्नम सेंटर में, सेंटर ऑफ द बॉडी, चेस्ट के बीच में होती है स्टर्नम बोन, ब्रेस्ट बोन बोलते हैं. एंड दिस इज द स्कैपुला बोन विच इज फ्लैट. शोल्डर ब्लेड पीछे की तरफ होती है. ये स्कैपुला बोन भी फ्लैट है. ये बाहर से देखो कॉन्वेक्स है, अंदर से ये कॉनकेव होती है. और हमारी स्कल की जो बोन्स हैं वो भी फ्लैट बोन है, अपर पार्ट ऑफ स्कल. तो दीज बोन्स आर ऑल्सो फ्लैट बोन्स. मैंडिबल, ये सब फ्लैट बोन है. देखो बहुत थिन है, पतली है, ये मैंडिबल बोन होती है, तो ये बहुत थिन और पतली है, तो इसलिए ये भी फ्लैट है. रिब्स भी फ्लैट होते हैं एंड आगे की तरफ, आगे और अंदर से बहुत पतले होते हैं. सो दीज आर ऑल्सो फ्लैट बोन. सो स्टर्नम, रिब्स, शोल्डर ब्लेड एंड स्कल बोन. जहां भी प्रॉब्लम हो आप मुझे रोक के पूछ सकते हैं. ठीक है, क्लियर है चारों टाइप के बोन्स? Yes, ठीक है sir. ना. लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन और लास्ट आएगा अब इरेगुलर बोन. इरेगुलर बोन हमने बताया कॉम्प्लिकेटेड अनयूजुअल शेप, कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, शेप इज अनयूजुअल. मसल, टेंडन, ligaments usually attach to these. So these bones, they give attachment to large number of muscles, tendons and ligaments. That is why their shape is irregular. So complicated shape है, unusual shape है, not definite shape नहीं है, कोई particular इसकी shape नहीं है. Large number of muscle, tendons and ligaments usually attached to these bones. Example is our vertebrae bone and hip bone or pelvic bone. So our vertebra and hip bone. So यहाँ आप देख सकते हो ये vertebra है, तो vertebra आप देखो कितना irregular है. ये spinous process होता है जो हमें पीछे की तरह, कमर पे पीछे की तरफ दिखती है, सेंटर में लाइन डॉट्स की तरह दिखते हैं ऊपर से नीचे तक, तो वो स्पाइनस प्रोसेस होते हैं. फिर ये फेसेट जॉइंट्स होते हैं जो ऊपर वाले वर्टिब्रा नीचे वाले वर्टिब्रा से जुड़ते हैं. अपर फेसेट जॉइंट्स, सुपीरियर फेसेट जॉइंट्स एंड इंफीरियर फेसेट जॉइंट्स. These are the transverse process of vertebra और ये body of vertebra. तो ये बहुत irregular shape है क्योंकि यहाँ पर भी number of muscles and ligaments are more. This is about the vertebra, structure of vertebra. और ये हमने देखा pelvic bone. So pelvic bone की shape भी पूरी irregular है. Cartilage, देखो मैंने यहाँ पर दिखा रहे हैं, हेड ऑफ फीमर पे क्या प्रेजेंट होता है? कार्टिलेज. तो हमने जॉइंट्स पे पढ़ा था, हर एक जॉइंट जहाँ बोन बनाती है तो बोन के ऊपर कवरिंग किस चीज की होती है? कार्टिलेज की, टू फॉर शॉक एब्जॉर्प्शन एंड टू डिक्रीज फ्रिक्शन. तो ये फीमर बोन है, ये पेल्विक बोन है पूरी जो इरेगुलर शेप की है. तो 4 बोन्स, लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट एंड इरेगुलर.
नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द बोन, कि किस चीज का बना है बोन का स्ट्रक्चर. सो बोन स्ट्रक्चर इज यूनिक बेस्ड ऑन लोकेशन एंड बोन टाइप. सो हर एक बोन का स्ट्रक्चर यूनिक है, डिपेंड करता है वेयर द बोन इज प्रेजेंट and what is the type of bone, whether it is long bone, short bone, flat bone or irregular bone. So the structure of bone depends on location of the bone, कि bone कहाँ पर है, and also on the type of bone. So compact bone, outer layer, अभी हमने पढ़ा था, outer bone was the compact bone. ठीक है ना. स्पॉन्जी बोन अंदर की तरफ, बाहर की तरफ जो बोन है वो सारी कॉम्पैक्ट बोन. सो दिस इज ऑल कॉम्पैक्ट बोन, इनसाइड इज स्पॉन्जी बोन. सो कॉम्पैक्ट बोन, आउटर लेयर इज डेंस, स्मूथ एंड सॉलिड टू द नेक्ड आई. हम जब आंखों से देखते हैं तो हमें लगता है कि आउटर जो बोन है वो बहुत स्मूथ है एंड इट इज सॉलिड, कॉम्पैक्ट. सो डेंस है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, और सेल्स जो हैं वो बहुत अच्छे से पैक्ड हैं, इसमें डेंसिटी बहुत ज़्यादा है. सो कॉम्पैक्ट आउटर लेयर ऑफ द बोन इज डेंस एंड इट इज स्मूथ एंड सॉलिड टू द नेक्ड आई. जब हम आँख से देखेंगे बाहर से बोन को तो वो स्मूथ है और सॉलिड है. इनसाइड द बोन इज स्पॉन्जी बोन, इनर लेयर ऑफ द बोन, होली लाइक ए हनी कॉम्ब. अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है वैसे अंदर से दिखती है बोन. तो इट इज लाइक ए हनी कॉम्ब अपीयरेंस इनसाइड. तो स्पॉन्जी बोन की जो अपीयरेंस है वो लाइक ए हनी कॉम्ब, मधुमक्खी का छत्ता उसकी तरह है, उसमें छोटे छोटे छेद हैं. मेड ऑफ स्मॉल निडल लाइक फ्लैट पीसीज कॉल्ड ट्रेबेकुले. तो वो जो प्रोसेसेस हैं जिनके बीच में होल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ट्रेबेकुले. मेड ऑफ स्मॉल निडल लाइक फ्लैट पीसेस नोन एज ट्रेबेकुले. तो ये जो लाइंस अंदर चलती हैं, यहाँ पर जो ये लाइंस क्रिस क्रॉस चलती हैं बीच में, ये सब क्या कहलाते हैं? ट्रेबेकुले. आप यहाँ भी देख सकते हो ये जो चल रहे हैं ये सब क्या है? ट्रेबेकुले, जिनके बीच में होल्स प्रेजेंट है. तो दीज आर द ट्रेबेकुले. Made of small needle-like flat pieces called trabeculae. Open spaces between trabeculae are filled with red or yellow bone marrow. So, बीच में जो open spaces और hole होते हैं, those holes are filled with red bone marrow and or yellow bone marrow. Because वहाँ पर cell formation, blood cell formation होता है, RBC और WBC. So open spaces between trabeculae are filled with red or yellow bone marrow. These are the two main things in the structure. Compact bone जो outer layer है, spongy bone जो inner layer है. Compact bone dense है and smooth and solid to the naked eye. Spongy bone में holes हैं like a honeycomb and there are needle-like processes known as trabeculae. Open spaces बीच में जो हैं, जो hole हैं, they are filled with red or yellow bone मैरो. सो यहाँ पे देखो ये मार्किंग्स दिख रहे हैं, ये सब ट्रेबेकुले हैं. ये जो लाइंस चल रही हैं, दीज आर ऑल ट्रेबेकुले. इन बिटवीन ये होल्स हमें दिख रहे हैं. तो ये होल्स जो किसके क्या फिल होता है इसमें? रेड बोन मैरो या येलो बोन मैरो. तो दीज आर द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन बिटवीन. ये ऑस्टियोफाइट्स होते हैं, ब्लैक कलर के जो डॉट्स दिख रहे हैं, दीज सेल्स दे फॉर्म द बोन. तो यहाँ पर ये ट्रेबेकुले, extensions of the cells, and in between there are holes which is filled with red bone marrow and white bone marrow. Now coming to the structure of a long bone. Long bone का structure कैसा होता है, अलग से उसको पढ़ें. तो डायफाइसिस, एपीफाइसिस, ये दो पार्ट हैं इसके. देन एपीफाइजियल लाइन एंड मेम्ब्रेन. तो लॉन्ग बोन में चार चीजें प्रेजेंट होती हैं. डायफाइसिस इज द सेंटर पार्ट, मेन शाफ्ट ऑफ द लॉन्ग बोन. तो सेंट्रल लॉन्ग पार्ट ऑफ द बोन शाफ्ट इज नोन एज डायफाइसिस. तो डायफाइसिस इज द सेंट्रल पार्ट और मेन शाफ्ट ऑफ द
long bone made of very thick compact bone surrounding a central marrow cavity. So shaft जो है, it has very thick compact bone, and that compact bone surrounds the central marrow cavity. So diaphysis is center bone, main shaft bone. It is the long part of bone, and डायफाइसिस पर जो बोन होती है बहुत थिक होती है आउटर कवरिंग कॉम्पैक्ट बोन की, एंड इट दैट कॉम्पैक्ट बोन किसको सराउंड करती है, किसको कवर करके रखती है, वो सेंट्रल मैरो कैविटी को. फिर है एपिफाइसिस. तो हमने पढ़ा था एपिफाइजियल लाइन जो एंड्स पे होती है. तो एपिफाइसिस इज द एंड ऑफ बोन, अपर एंड और लोअर एंड. एंड इज वाइडर देन डायफाइसिस. अपर एंड भी शाफ्ट से वाइड होगा, चौड़ा होगा. लोअर एंड भी शाफ्ट से चौड़ा होता है. सो इट इज वाइडर देन डायफाइसिस. Made of compact bone which surrounds spongy bone. So here also outside there is compact bone, inside there is spongy bone. Joint surface of each epiphysis is covered with hyaline cartilage. So ये हमने पढ़ा था कि joint जो surface bone की जो joint बनाती है, the part of the bone which takes parts in forming the joint is covered with cartilage. So joint surface of each upper end and lower end is covered with hyaline cartilage. So bone की surface का वो part upper end और lower end का जो दूसरी bone से जुड़ता है, joint बनाता है, that part is covered with hyaline cartilage, and that cartilage it decreases friction and absorbs the shock or forces. So this is diaphysis and epiphysis. Central part shaft is diaphysis, upper and lower end is epiphysis. Then epiphyseal line. I told you remnant of epiphyseal plate which is present in children, found in adult bone. Line is found in adult bone, plate is found in children. Shows amount of cartilage growth during adolescence. During our growing age, how much the bone has grown, that can be seen by the epiphyseal line. How much the cartilage has been grown, hyaline cartilage जो bone को cover करता है, और growing के time पे कितने cells नए बने हैं, कितनी bone नई बनी है, वो सब हम इस epiphyseal line से अंदाजा ले सकते हैं. So it is the remain of epiphyseal plate which is present in young children. It is line is found in adult bones. Shows amount of cartilage growth during adolescence, during our growing age till 15 to 18 years. Then membrane, periosteum. Osteum word जहां भी आ जाए, that is related to bone. Osteophyte, osteoarthritis, bone का inflammation. So osteum word is related to bone. Peri means periphery. Periphery is outside. किसी भी चीज की पेरिफेरी या किनारा कहाँ होता है, बाहर की तरफ. सो पेरियोस्टियम कवरिंग ऑफ आउटसाइड, अराउंड द आउटसाइड, बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन है बोन में, दैट इज पेरियोस्टियम. रिचली सप्लाइड विद नर्व फाइबर्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड ब्लड वेसल्स. तो यहाँ पर इस पेरियोस्टियम जो लेयर है बाहर वाली, इसमें बहुत सारे नर्व फाइबर्स प्रेजेंट हैं, लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट हैं और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं जो कि बोन को न्यूट्रिशन देते हैं. तो पेरियोस्टियम आउटसाइड लेयर है बोन की, कॉम्पैक्ट बोन के बाहर की तरफ होती है ये, एंड इट इज रिचली सप्लाइड बाय नर्व फाइबर्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड ब्लड वेसल्स. प्रोवाइड्स एंकरिंग पॉइंट्स फॉर टेंडन्स एंड लिगामेंट्स. तो टेंडन एंड लिगामेंट्स भी इस पे ही जुड़ते हैं. सो प्रोवाइड्स सपोर्टिंग पॉइंट फॉर टेंडन एंड लिगामेंट. तो सपोर्ट करके रखती है, उन्हें बांध के रखती है पेरियोस्टियम. देन एंडोस्टियम. एंडो मींस इनसाइड, एंडोस्टियम अराउंड द इनसाइड, इनसाइड ऑफ द बोन, सराउंड्स द स्पॉन्जी बोन. सो स्पॉन्जी बोन, कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन के बीच में जो मेम्ब्रेन है, दैट इज एंडोस्टियम. सबसे बाहर पेरियोस्टियम, फिर कॉम्पैक्ट बोन, फिर एंडोस्टियम, फिर उसके बाद स्पॉन्जी बोन. सो ये स्ट्रक्चर है
मेम्ब्रेन्स का। सो दो मेम्ब्रेन है, पेरियोस्टियम एंड एंडोस्टियम। पेरियोस्टियम आउटसाइड कवरिंग है, richly supplied with nerve fibers, lymphatic vessels and blood vessels, and it provides anchoring or supporting points for tendon and ligaments, उनको support करती है। Endosteum present inside and it surrounds the spongy bone, spongy bone के चारों तरफ ये present होती है, तो ये separate करती है compact bone को spongy bone से। So this is the structure, long bone। यहाँ पर दिखाई है epiphysis, upper end, upper end and lower end is known as epiphysis। दोनों तरफ epiphysis, बीच में क्या हो जाएगा, diaphysis। shaft region is known as central part is diaphysis। then gray color यहाँ पर जो शो किया है that is articular cartilage, क्योंकि ये जो सरफेस है ये क्या बनाएगी, जॉइंट बनाएगी, तो यहाँ पर आर्टिकुलर कार्टिलेज की कवरिंग होती है ताकि फ्रिक्शन ना हो और शॉक्स को एब्जॉर्ब किया जा सके, फोर्सेस को एब्जॉर्ब किया जा सके। देन दिस लाइन इज एपिफाइजियल लाइन, इनसाइड में आएगी बोन्स के। सेंटर शाफ्ट में देयर इज मेडुलरी और मैरो कैविटी। देन न्यूट्रिएंट फोरामेन इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर ब्लड वेसल एंटर इनसाइड द बोन। So there is a gap or small hole present in the shaft known as nutrient foramen। तो nutrient खाना पीना बोन का, nutrition, so nutrition इससे जाएगा, इस छेद से जाएगा, इस foramen से जाएगा। so nutrition कौन देता है, blood vessels। तो blood vessels they enter the bone, inside the bone through this nutrient foramen। Endosteum, you see this layer is endosteum between compact bone and inside spongy bone, endosteum। then periosteum, बिल्कुल बाहर, सबसे बाहर की जो कवरिंग है that is periosteum। तो आर्टिकुलर कार्टिलेज लोअर एंड पे भी प्रेजेंट है बिकॉज ये पार्ट भी जॉइंट बनाएगा, तो आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो यहाँ पर भी जो ये व्हाइट कलर से दिख रहा है ये सारा क्या है, आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो वो पार्ट बोन का जो जॉइंट बनाता है वो कार्टिलेज से कवर होता है, अदरवाइज बाहर की तरफ पेरियोस्टियम, फिर कॉम्पैक्ट बोन, फिर एंडोस्टियम, फिर मैरो कैविटी या स्पॉन्जी बोन, और दो एंड, लोअर एंड अपर एंड एपिफाइजियल एंड कहलाते हैं, और बीच का शाफ्ट डायफाइसिस कहलाता है, और अपर एंड और लोअर एंड में बीच में होती है एपिफाइजियल लाइन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन। नाउ दिस इज द लास्ट स्लाइड अबाउट द बोन्स, केमिकल कंपोजिशन ऑफ बोन। सो बोन्स किस चीज की बनी होती हैं, तो दे कंटेन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। बोन में ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं कुछ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं। ऑर्गेनिक में क्या क्या आएगा, जैसे सेल्स हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है ना। बोन के सेल, बोन को बनाने वाले सेल, बोन के सेल्स को तोड़ने वाले सेल। सो ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स, साइट्स मतलब सेल, ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोइड, ऑस्टियोइड टिश्यू प्रेजेंट होता है मेड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड कोलेजन फाइबर्स सिक्रेटेड बाय ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोइड को बनाते हैं। फिलर मैट्रिक्स अराउंड द सेल्स, दो सेल्स के बीच में जो गैप होता है उसको ये ऑस्टियोइड भरता है। ऑस्टियोइड किस चीज का बना है, ग्लाइकोप्रोटीन एंड कोलेजन फाइबर्स का, मेड बाय ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट इसको बनाते हैं। एंड ये फिलर मैट्रिक्स, बीच की जो खाली जगह होती है सेल्स के, उनको भरने का काम करता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस जितने हैं दे कंट्रीब्यूट टू फ्लेक्सिबिलिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो बोन को थोड़ी बहुत जो अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है और उसकी ताकत जो है वो इनसे मिलती है, इन ऑर्गेनिक मटेरियल से। तो ये सारे जो हैं ये मिलके बोन को स्ट्रेंथ देते हैं, उसको थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल भी बनाते हैं। फिर है इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, हमने पढ़ा कैल्शियम, फॉस्फेट, ये सब मिनरल सॉल्ट्स, ये इनऑर्गेनिक हैं। कंट्रीब्यूट टू हार्डनेस ऑफ द बोन, तो कैल्शियम हमें पता है बोन को हार्ड बनाता है, तभी घर पे सब बोलते हैं कि दूध पियो, कैल्शियम खाओ। अलाउइंग फॉर कंप्रेशन रेजिस्टेंस, कंप्रेशन रेजिस्टेंस मतलब कोई भी चीज जो बोन पे फोर्स लगाएगी उसको ये रेजिस्ट
करते हैं क्योंकि ये हार्ड होते हैं, बोन को हार्ड बनाते हैं. सो मिनरल सॉल्ट्स, कैल्शियम, फॉस्फेट, दे कंट्रीब्यूट टू हार्डनेस ऑफ द बोन. ये बोन को हार्ड बनाते हैं. एंड दे अलाउ फॉर कंप्रेशन रेजिस्टेंस. बोन को कंप्रेशन, कोई भी चीज जोर लगाए बोन के ऊपर उसको ये रेजिस्ट करते हैं. बोन पे कोई भी फोर्स लगे बाहर से, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगे, उसको ये रेजिस्ट करते हैं, उसके अपोजिट ये फोर्स लगाते हैं. ठीक है ना. तो these are the two things which the bones are made of, organic and inorganic substances. Organic में सारे cells आएंगे, osteoblast, osteocyte, osteoclast. Then osteoid tissue आएगा जो glycoprotein और collagen fibers का बना है, made by osteoblast. And this osteoid, it functions as filler matrix around the cells. Cells के चारों तरफ जो खाली जगह है उनको ये fill करता है. All these cells, they contribute to flexibility and strength of the bones. Then inorganic substances, they are mineral salts, calcium and phosphate. They contribute to hardness of the bone and they allow for compression resistance. कोई भी external force लगती है उसको ये resist करते हैं. ठीक है. So this is all about bones and types of bone and their structure. तो हमने आज सारे टाइप्स ऑफ बोन के बारे में पढ़ा. लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन. देन वी स्टडीड अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ बोन, कॉम्पैक्ट बोन आउटर लेयर, स्पॉन्जी बोन इनर लेयर, इसमें हनीकॉम्ब अपीयरेंस होती है, ट्रेबेकुले होते हैं, और ये जो हॉलो स्पेस है इसमें येलो और रेड बोन मैरो होती है. फिर डायफाइसिस, शाफ्ट ऑफ द बोन. लॉन्ग बोन के क्या क्या पार्ट हैं? डायफाइसिस जो शाफ्ट है ये बहुत थिक और हार्ड होता है. एपीफाइसिस, एंड ऑफ द बोन, इट इज वाइडर देन डायफाइसिस and surrounds the sponging bone made of compact bone. Joint surface is covered with cartilage, hyaline cartilage. Epiphyseal line is the remaining of epiphyseal plate. Adults में line रह जाती है सिर्फ, found in adults bone. It shows amount of cartilage growth during adolescence, कितना cartilage बना है. Membrane दो हैं, periosteum सबसे बाहर जिसमें की सारी blood vessel, nerves और lymphatic vessels चलते हैं. Endosteum around inside between the compact bone and spongy bone. So सारा स्ट्रक्चर हमने बोन का देखा. फिर इसकी कंपोजिशन दो चीजों से है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. इसको रीड करना है अच्छे से, और कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी इन नेक्स्ट क्लास. ओके, थैंक यू.